today's session without wasting any further time. So in this week current affairs, let's start with the very first current affair. That is a news related to Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India से related एक news है, and it's a very good news, right? It's very progressive and a very good news, which says that Reserve Bank of India is now promoting Indian rupee for a global use. So Reserve Bank of India ने decide किया है that now let's you know make rupee a global currency, right? तो global currency में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को प्रमोट करने की बात की है, राइट? सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए दैट ओके हु इज अ गार्जियन ऑफ फॉरेन रिजर्व इन इंडिया, देन ऑब्वियसली इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है दैट ग्लोबल यूज करना है किसका? इंडियन रुपी का. So it has requested government of India to permit domestic banks to extend rupee loans to overseas borrower. अगर ओवरसीज कोई बोरोवर है तो अभी तक क्या होता था? अभी तक रुपी के फॉर्म में लोन नहीं दिया जाता था उन लोगों को. बट नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप प्लीज ये करो. और इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है? टू इंक्रीज द रुपी प्रेजेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में हाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाए. So this is very important. Yes, first and foremost thing is I want everybody to answer me this thing, that please type your name and your center in the comment section. Name is visible, just type your center name, number one. Second thing, you have to type that have you joined the centralized Telegram group. This thing you have to answer, right? Because I want to know. Yes, very good, very good. So we have people from Janakpuri, we have people from Pitampura, fine, fine. Rajori we have. And क्योंकि जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि सर पीडीएफ कहाँ मिलती है, ऑल दीज थिंग्स विल बी शेयर्ड, राइट? तो आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर मी आप लोग कौन कौन से सेंटर से विजिबल हो, प्रेजेंट हो, बिकॉज दिस थिंग आई ओके. सो प्लीज join the telegram group, it is there. Okay, okay. NSP Pitampura is there. Sir, will you give the hard copy question? वो बेटा अलग होंगे. अभी की जो ये क्लास है, in this class, I will share the PDF in the Telegram channel. That's why I am requesting everybody to kindly tell me that you are from which particular sectors. Okay, Dilshad Garden sector we have, Rajori, because I want to know that कौन से सेंटर के बच्चे नहीं आ रहे हैं. Okay. Okay, that's fine, that's fine. Pavni is from Karkatuma, Janvi, Janakpuri. Okay, Mukund is from Dilshad Garden. Rudra, yeah. Yeah, you will get GK module also, not to worry about that. Yeah, okay. Telegram channel will be circulated in your groups. Okay, just tell me you are from which center. आप अपना अगर जिनको अभी तक टेलीग्राम की इंफॉर्मेशन नहीं है, just type me the center name. I will discuss with the team why it is not circulated yet. Torres from Dwarka, okay, we have, okay, Janakpuri. Okay. So, beta ध्यान रखना है that we have one centralized Telegram channel where I share all these information. So I will share this particular PDF there. ठीक है? After every class I will do that. Don't worry about this fact. And secondly is recording is also there. You will find the recording also, right? So अब मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे कर ली है. अब मैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ता हूँ, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन. अब मैं मान के चल रहा हूँ दैट वी आर स्टार्टिंग. हाँ, ओके. इन कड़कड़डूमा में टेलीग्राम लिंक नहीं मिला है. ओके फाइन, आई विल आस्क द टीम, राइट? ठीक है. या रिकॉर्डिंग विल आल्सो बी देयर. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो फर्स्ट करंट अफेयर बहुत प्रोग्रेसिव करंट अफेयर है जो कि बात करता है दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल मेक रुपी एज अ ग्लोबल करेंसी. अब रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने की बात करिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स है दे शुड प्रोवाइड लोन इन इन इंडियन करेंसी टू फॉरेन बोरोवर्स.
राइट, तो भी ओवरसीज बोरोअर है, वो इंडियन रुपी के फॉर्म में लोन ले। और एम क्या है? एम है उसका टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ इंडियन रुपी इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। अभी तक जो प्रपोजल है, द प्रपोजल अलाउ इंडियन बैंक एंड देयर फॉरेन ब्रांचेस टू ऑफर रुपी लोन्स फॉर नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। इनिशियल फोकस था जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, बट नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेइंग कि आप प्लीज इसे ग्लोबल करो। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, so it's very natural that we should know what are the functions of Reserve Bank of India. So we have one centralized bank which is called as Reserve Bank of India, RBI, which was established after RBI Act, right? After RBI Act it was established, right? Second thing you have to remember that जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? तो इट इज बैंकर्स ऑफ द बैंक, ये करेंसी इशू करता है, ये डेवलपमेंट फंक्शंस करता है, ये रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हेल्प करता है, इजंट इट? उसके बाद फेक करेंसी को डिटेक्ट करता है, राइट? तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में जो फॉरेन रिजर्व्स होती हैं, इंडिया में जो फॉरेन रिजर्व होती हैं, फॉरेन रिजर्व का जो आप मैनुपुलेटर है, आप बोल सकते हो फॉरेन रिजर्व्स का जो गार्जियन है, जो फॉरेन रिजर्व को केप्ट करता है, दैट इज आल्सो आरबीआई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछता है अगर कोई कि सर आरबीआई को स्टैब्लिश करने में किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो याद रखना है दैट इन 1934 देयर वाज वन कमीशन नोन एज हिल्टन यंग्स कमीशन। तो जो हिल्टन यंग कमीशन था ना बेटा, हिल्टन यंग कमीशन में आपको ध्यान रखना है कि इसने रिकमेंड करा था दैट देयर शुड बी वन सेंट्रलाइज्ड बैंक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, दैट व्हेन इट गॉट नेशनलाइजेशन, तो याद रखना है दैट आरबीआई गॉट नेशनलाइजेशन इन 1949। 1949 में it got nationalization. Now I want everybody to answer this. Who is the current governor of RBI? Please, everybody, kindly answer this. Who is nationalization? मतलब बेटा जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है जब प्राइवेट कर देते हैं, नेशनलाइजेशन जब आप उसे कंट्री गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लेती है, राइट? हु इज द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर? नो, आदि गवई इज अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। आरबीआई गवर्नर, आई एम आस्किंग, just tell me the name of the RBI governor. Very good, very good. Dhruva has answered. Yeah, the first Siddharth. Yeah, Siddhant का आंसर भी ठीक है बिल्कुल। Yes, Mr. Sanjay Malhotra. Mr. Sanjay Malhotra is currently the RBI governor. Mr. Sanjay Malhotra. He is the current RBI. Oh, very, yeah, sorry, Dore. Yeah, right. तो ये हो गए आपके प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर। ओके 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 फाइन। वैसे शेक्सपियर ने बोला व्हाट्स देयर इन नेम, राइट? तो फर्स्ट करंट अफेयर हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू आरबीआई, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव न्यूज। और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आरबीआई की कोट करी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड और थोड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आपको पता है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें बेसिकली हम मेजर सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, right? We have Mizoram, we have Meghalaya, we have Tripura, we have Arunachal, right? So we called it as seven sister, isn't it? और आपको पता होगा जो ये सेवन सिस्टर है, yes, Assam is also there. सेवन सिस्टर्स जो स्टेट हैं, they are not that much developed, right? But now साइमल्टेनियसली धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली वी आर डेवलपिंग दैट। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू मिजोरम, क्योंकि मिजोरम में अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गई है रेलवे। कैन यू इमेजिन, अब जाके मिजोरम जैसे स्टेट में रेलवे कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है। तो याद रखना है दैट कैपिटल ऑफ मिजोरम इज एजवाल एंड हियर द railway connection has been started, so there is a place called as Sairang railway link, right? So question आ सकता है that this Sairang railway link is related to which state? So answer is
मिजोरम, so it is related to मिजोरम स्टेट। तो अभी यहाँ पर धीरे धीरे हम नॉर्थ ईस्ट में अपना रेलवे नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इससे क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा, राइट। नॉर्थ ईस्ट अभी जो हमें लगता है दैट इट इज नॉट थोड़ा ये एक तरीके से पूरा इंक्लूसिवली इंडिया का पार्ट नहीं लगता। जब डेवलपमेंट हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी होलिस्टिकली इंडिया का पार्ट बनेंगे। दिस अ वेरी गुड न्यूज। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट क्वेश्चन आएगा साइरांग रेलवे लिंक इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आंसर याद रखना है मिजोरम। क्वेश्चन आ सकता है सर मिजोरम की कैपिटल बता दो, तो एज वेल इज द कैपिटल। नाउ यू हैव टू सी व्हाट इज द लोकेशन। सो यू कैन सी रेलवे लिंक का प्रोजेक्ट आपको शो हो रहा होगा, और यहाँ पर यू कैन सी दिस इज मिजोरम, राइट। मिजोरम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। why it is an important state of India? Because it shares two international border, yes, two international border share करता है। one is with Myanmar, one is with Myanmar, second is with Bangladesh, second is with Bangladesh, right, second is with Bangladesh। तो टू इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये, म्यांमार के साथ शेयर करता है और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अभी मिजोरम, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था मिजोरम इज इन न्यूज। व्हाई इट इज इन न्यूज? लास्ट क्लास में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था अभी पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स की रिपोर्ट आई है, और उसके अकॉर्डिंग मिजोरम ने अपनी लिटरेसी रेट को 95 अबव इंक्रीज कर दिया है ना। तो मोस्ट लिटरेट स्टेट भी बन गया है ये पीरियोडिक लेबर वर्क, हाँ, फोर्स से रिलेटेड, राइट। so this is also very important, right? See, all those students who are there in class, just let me tell you that current affair weekly class is there. So all those who are new, consider it is your first class, not to worry about that. Why? Because every week we do this weekly classes and things will revise, so don't worry about that. If anybody is new in class, please enjoy the class, बिकॉज करंट अफेयर में कोई पीछे का बैकलॉग नहीं होता है, राइट। तो नॉट टू वरी, जस्ट सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स और नॉट, राइट। या रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, बानी, डोंट वरी, राइट। आई विल टेल यू द प्रोसेस हाउ यू कैन फेच द रिकॉर्डिंग्स, राइट। तो रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बात करी है मिजोरम की, तो यू कैन सी दिस मैप, राइट। या ध्रुव, या आई विल शेयर द, अभी मैं स्क्रीन दिखाऊंगा, नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है। यस, तो यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे थे, लेट मी डिस्कस यू दिस थिंग अगेन, कि अभी मिजोरम न्यूज में है बिकॉज यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, राइट। मिजोरम अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था बिकॉज यहाँ पे जो लिटरेसी रेट रजिस्टर हुआ है वो इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मिजोरम की कैपिटल आपको मेंशन्ड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैपिटल, करेंसी, कुछ बेसिक चीजें तो मैं आपको क्लासेस में ही याद करा दूंगा, दैट इज माय एश्योरेंस, राइट। तो कुछ चीजें तो आप क्लास में ही याद करके जाओगे। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे पता होने चाहिए मिजोरम के, वी शुड नो दैट मिजोरम इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक स्टेट। व्हाई? क्योंकि ये दो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इधर ये बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड हेयर इन द ईस्टर्न साइड इट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, इट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, म्यांमार एंड एज वेल, म्यांमार एंड बांग्लादेश दोनों कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम। मिजोरम कैपिटल इज एज वेल, राइट, फाइन। It is a part of Seven Sisters, so you can see other states also. Arunachal Pradesh is there, Nagaland is there, Assam is there, Meghalaya is there, Manipur is there, Tripura is there, right? सिक्किम इंडिया में बाद में ऐड हुआ था। सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975, राइट। अभी रिसेंटली सिक्किम का फाउंडेशन डे भी था, अभी 3-4 दिन पहले, राइट। So you have to remember this part also, that Sikkim became the part of India in 1975. Before that, Sikkim was an independent kingdom, right? And the capital of Sikkim is Gangtok, right?
So this point you have to remember. तो एक हो गया अरुणाचल, दो हो गया नागालैंड, थ्री हो गया मणिपुर, फोर हो गया मिजोरम, त्रिपुरा हो गया फाइव, मेघालय हो गया छह और असम हो गया सात. That's why it called as seven sisters, right? Remember, Sikkim doesn't became the Sikkim doesn't consider as a part of seven sisters. सात sisters में सिक्किम नहीं आता है क्योंकि सिक्किम 75 के बाद इंडिया में ऐड हुआ था. सर अरुणाचल प्रदेश also shares border with two countries. या हाँ, राइट. अरुणाचल या अरुणाचल प्रदेश बेटा देखो ऊपर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इधर म्यांमार के साथ करता है. इनफैक्ट ये जितने भी स्टेट्स है ना, इधर वाले जो आप स्टेट देख रहे हो, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, दे ऑल शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, राइट. तो ईस्टर्न साइड पे है ना, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एनी डाउट? Is it fine? Let me take your doubt. Their capital of Assam is written wrong. Yes, very good. The capital of Assam is Dispur, not Guwahati. Exactly. Very good. Very good. We should. Very good, Adi. Sir, when exact date of the formation of Sikkim? देखो यश, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो यश का क्वेश्चन है सर सिक्किम कब इंडिया का पार्ट बना. तो देखो बहुत अच्छी स्टोरी है. सिक्किम पहले ना एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था. तो हमने क्या करा, हम लेके आए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हम इंडिया में. तो हमने उसके बाद सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया. और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया. प्रिसाइजली डेट है 16 मई 1975. इसलिए मैंने बोला अभी सिक्किम का फाउंडेशन डे हमने मनाया. यस यस यस. ठीक है. तो यस, आई होप नाउ योर डाउट इज क्लियर. या हाँ, राइट. एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. तो जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर करो. इफ ऑल द थिंग्स आर फाइन, kindly write yes sir in the comment section. I want everybody to participate here. Very good, very good. चलो आगे चलते हैं. moving forward to the next news. आगे आते हैं अगर हम नेक्स्ट न्यूज पर. तो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू माउंट एवरेस्ट. आप बोलोगे सर ये किसकी फोटो आपने दिखा दी है. तो ही इज 55-year-old नेपाली माउंटेनियर, right? And he break the record that he recently reached Mount Everest. So he become the oldest to climb Mount Everest. ठीक है, तो याद रखना है. कामी रीता शेरपा is the name and he is from Nepal. So I've shown you the you know image also ताकि आपको याद रहेगा. ठीक है. And 55 years, can you imagine? 55 years. हमारे इंडिया में लोग 55 इयर्स पे मेट्रो की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते. एंड दिस पर्सन ही रीच अप टू माउंट एवरेस्ट. वी शुड अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन. तो ये आपको याद रखना है. अब नाम आपने याद रख लिया, फाइन. अब सर माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. सर माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है दुनिया का. ठीक है. इट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक, इजंट इट. तो थोड़ा सा बात याद रखनी है आपको, दैट जो हिमालयन माउंटेन है ना बेटा, हिमालयन माउंटेन्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज यंग माउंटेन्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन, राइट? फोल्ड माउंटेन, राइट? तो यस, आई विल शो यू द प्रीवियस स्क्रीन. जस्ट ठीक है. तो हिमालयन माउंटेन के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ. जो हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन, so you have to remember they are called as the young mountains. young इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अभी भी राइज कर रहे हैं. यस, दे आर कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन. क्यों फोल्ड माउंटेन बोलते हैं? तो बेसिकली टू टेक्टोनिक प्लेट्स, जब भी कभी दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो वो क्या करती हैं, दे यूज टू अपलिफ्ट द सेडिमेंट्स
तो उनसे जो माउंटेन बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, फोल्ड माउंटेन। यस, राइट। तो आपको पता है, सरप्राइज होगा ये जान के दैट माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी राइज कर रही है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? यस, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं। अब जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करेंगी तो सेडिमेंट्स को क्या करेंगी, वो अपलिफ्ट कर देंगी। इसी वजह से आप देखोगे दैट माउंटेन्स आर वेरी अनस, you know they are not very, kind of fixed. They are not sustainable type. They are not, they don't have a proper structure. इसीलिए वहां पर लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और अभी एज पर द रीसेंट स्टडी, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एग्जैक्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो आप देखोगे दैट एग्जैक्ट, सर कैन यू प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ फोल्ड माउंटेन अगेन? बिल्कुल यश, आप 3 बार पूछोगे, मैं 3 बार बताऊंगा। देखो, लेट मी शो यू द डिफरेंट स्क्रीन। एक बार मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, जस्ट शोइंग यू द व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं पूरा दोबारा से बताता हूँ, राइट? आई होप नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। अब देखो होता क्या है बेटा, दिस, ये समझना थोड़ा। अर्थ के अंदर क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो दीज आर व्हाट, दीज आर टेक्टोनिक प्लेट्स। लेट से दो प्लेट हैं, ये हम बोल सकते हैं दे आर टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेट क्या करती है, यहाँ पे पड़ी है सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स है। अब जब ये प्लेट आपस में कोलाइड करेंगी, दे आर कमिंग एट द सेम, कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, so what they will do, they will fold the, you know uplift the sediments, और ये माउंटेन शेप ले लेंगे। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, फोल्ड माउंटेन। एंड ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज यंग माउंटेन, क्योंकि हमारा जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस है, उस जियोलॉजिकल प्रोसेस में जो माउंटेन्स हैं वो लेटेस्ट है, राइट? तो याद रखना, अगर आपसे कोई लेटेस्ट हाइट पूछता है, लेटेस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो याद रखना है हमें, लेटेस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848.86 मीटर, राइट? हमारी बुक्स में भी अभी 8848 लिखा हुआ है, बट दिस 0.86 मीटर हाइट हैज बिन इंक्रीज, ये बढ़ गई है, राइट? So this point is very important point. No, Adi, now it is 8848.86 meters, right? तो ये अभी 2-3 साल पहले ही जब रिसर्च हुआ था, then they have identified that yes, the height of Mount Everest has been increased, right? So this is very important, right? चलें आगे, is it fine? आगे चलते हैं towards नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ टॉलेस्ट माउंटेन पीक है, तो यहाँ पर भी देखो 8848 लिखा है, बट जैसा मैंने आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दिया दैट इट इज नॉट 8848, इट इज नॉट 8848.86, 8848.86, right? Just a second, there is some technical glitch. Now it's fine. Yeah, तो 8848.86। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक इज K2, गॉडविन ऑस्टिन, राइट? इट इज 8861। इसकी फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है। थर्ड हाईएस्ट पीक इज कंचनजुंगा। कंचनजुंगा इज इन द स्टेट्स ऑफ सिक्किम। इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है वहां पर कंचनजुंगा है। एंड फोर्थ हाईएस्ट, तो फोर्थ हाईएस्ट काफी सारी हैं जो कि रेंज करती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको याद ही रखनी है, टॉप 3 आपको याद रखनी है। एंड ऑल द थ्री आर इन हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंजेस इज फेमस फॉर लार्ज पीक्स, ठीक है? तो उसमें फोर्थ में बहुत आ जाती है, आपकी नंदा देवी आ जाती है, ठीक है? नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है? अन्नपूर्णा आ जाती है, बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन ये टॉप 3 आपको याद रखनी है। इज इट फाइन? काइंडली से यस और नो। करंट अफेयर्स पूरा समझ पा रहे हो ना चीजें? आर यू एंजॉइंग? जस्ट टेल मी दैट। वेरी गुड, वेरी। हाँ बेटा, इट इज पावनी, इट इज राइट नाउ इन दी तिब्बत रीजन, जो कि चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है।
So there you will find Mount Kailash. Oh, Bani, oh, that's nice. You are having your first session. Yeah, hopefully you are enjoying. है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही होगी, है ना? देखो, all those who are in the class right now, first and foremost thing I want to say that if you are into this process, if you are into this process of preparation, then please enjoy it. Don't feel any burden कि यार पढ़ना पड़ रहा है हमें. अगर आप इसे फोर्सफुली करोगे, trust me, one day or another day, one week after another week, you will, get demotivated. But if you see this particular process as a new development in yourself, as a new personality development in yourself, as a new learning, then definitely you are going to enjoy it. And the moment you start enjoying the process, nobody can stop you from fetching the top rank. All those who make to the top college are the people who enjoy this, process of hard work, process of grind. You have to enjoy it. अभी इन करंट अफेयर्स देयर मेनी थिंग्स. अभी आपने देखा, मैंने आपको एक आरबीआई की न्यूज बताई, फिर मैंने आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज बताई, और अब मैं आपको एक बेसिकली ज्योग्राफी की न्यूज बता रहा हूँ. हो सकता है मैं आगे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज बताऊं, हो सकता है मैं आपको यू नो और किसी सब्जेक्ट की न्यूज बताऊं. तो जीके हैज अ मल्टीपल कैनवास, राइट? बट आपको अगर उसे आप बर्डन की तरह समझोगे, देन डे और अनदर यू विल स्टार्ट फीलिंग अबे यार क्या है, राइट? और आप इसे एज अ डेवलपमेंट की तरह देखोगे, देन डेफिनेटली इट विल एड वैल्यू टू इट. या आई विल शेयर बेटा, द ऑल द पीडीएफ विल बी शेयर इन द ग्रुप. ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नोएडा 62 सेंटर? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट वांट टू नो. हाँ सर, दिल्ली का गार्बेज माउंटेन आता है टॉप 10 में? नहीं बेटा, नहीं आता. मुझे पता है आप गाजीपुर पे क्वेश्चन पूछ रहे हो. नो, है ना, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यस. हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नोएडा स्टेट? नोएडा सेंटर 62 सेंटर. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? ओके, 62, not 18. I'm asking for 62. हाँ हाँ हाँ. ओके, चलो चलो, आ जाओ आगे. वो मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस वगैरह मैं सब कराऊंगा, टेंशन मत लो. अभी आप बस जितना मैं आपको करा रहा हूँ, बस आप अभी आपकी टेंशन ही होनी चाहिए जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. बी इन प्रेजेंट, दैट्स इट. आ जाओ. टाइमिंग टू मिशन. अभी मैंने आपको बोला था ना मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज पे ले जाऊंगा, तो अब मैं आ गया आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज पे. टाइमिंग टू मिशन है. कौन सी कंट्री का मिशन है? चाइना का मिशन है. क्या एम है? टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम नियर अर्थ एस्टेरॉइड एंड रिटर्न देम टू अर्थ. अब आप बोलोगे सर एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो, यू नो ये एक प्लेनेट है जिसका नाम है, लेट्स से, मार्स. ये एक प्लेनेट है जिसका नाम है, लेट्स से, जुपिटर. तो सोलर सिस्टम में कुछ गैसियस पार्टिकल, आइस क्रिस्टल, इस तरह से यू विल फाइंड big blocks. So these are called as asteroids, right? So they are formed generally with gaseous particle, ice crystal, dust particles. तो कई बार क्या होता है, ये एस्टेरॉइड अर्थ के क्लोज भी आ जाते हैं. तो अभी चाइना का एक मिशन है जिसका नाम है टाइमविन 2 मिशन, और इसका एम है कि ये जो अर्थ के नियर जो एस्टेरॉइड्स हैं उनके सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और अर्थ में लेके आएगा फॉर फर्दर स्टडी, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओके, Tianwen 2 mission is related to which country? The answer is China, right? So this point you have to remember, right? So this is a news which is related to space technology, right? Space technology से related news है, so this point you have to remember. Moving forward to the, yeah, yes, for study only, है ना? इससे अर्थ की स्टडी, एस्टेरॉइड की स्टडी करने के लिए ला रहे हैं मान्य, right? Is it fine? All right. Clear है. यशोदा एआई. यशोदा एआई is very important again. यशोदा एआई.
आजकल आपको पता है दैट वी आर इनटू एआई, इजंट इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, इट इज। हाँ बेटा, क्वासी सैटेलाइट का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली अ कंप्लीट सैटेलाइट, राइट? So it behaves like a satellite. So it's just like that. So let's come to Yashoda AI. What is Yashoda AI? तो आजकल क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, यू नो, इवन रोबोटिक्स आप देखते हो, मशीन लर्निंग आप देखते हो, तो एआई आप देखोगे हर एक डे टू डे एक्टिविटीज में आपको एआई दिखने को मिलता है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो उसने क्या किया है, उसने यशोदा एआई को इंटीग्रेट किया है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली एआई साथी और अ फ्रेंड, जिसका काम क्या होगा, टू एनहांस वुमेन लिटरेसी इन आर्टिफिशियल एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो बेसिकली दिस इज अ न्यूज विच इज रिलेटेड टू वुमेन empowerment. This is a news which is related to women empowerment, and its aim is what? To increase women literacy in artificial intelligence and digital awareness. It's very important. इस प्रोग्राम ये अलाइन करता है इंडिया के विकसित भारत के विजन को। कब इंडिया को विकसित भारत होना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेटेड टू बिकम विकसित, और यू कैन से डेवलप। So India will going to be developed by year 2047. This is very important. If anybody asks you what is the government of India's target to become Viksit Bharat, it is 2042, right? So this point you have to remember, Viksit Bharat 2042, यशोदा एआई। तो ये सारी बातें याद रखना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या करा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये करा है। हाँ, Pamni, there are many countries associated with AI, अगर एआई की स्टोरी अगर ले बैक मैं बताऊं, तो देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज एलन टर्निंग। आपने आपने एप्पल का स्टोरी सुना होगा, हैव यू सीन दैट एप्पल वैसे बाइट का साइन है, तो इट इज रिलेटेड टू एलन टर्निंग, जिन्होंने एक एनिग्मा कोड बनाया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट? तो वहां से कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग एआई की शुरुआत हुई थी, एंड देन देयर मेनी पीपल हु वर इनटू दिस प्रोसेस, right? So you will find scientists from UK, you will find scientists for Germany, US, तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना आर्ट। लेकिन ये आप बोल सकते हो दैट दिस टेक्नोलॉजी वाज स्टार्टेड वे बैक ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? चलो, तो मैंने आपको बताया यशोदा एआई के बारे में, राइट? आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं रिलेटेड टू सी पैक, सी पैक एक्सपेंशन टू अफगानिस्तान। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये सी पैक क्या है? सीपैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अब क्या हो रहा है, ये सीपैक अफगानिस्तान में भी एंट्री ले रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ले रहा है तो ले रहा है, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पहले आप सीपैक समझो। तो इफ यू सी दिस मैप, दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट? सीपैक, एंड दिस आइडिया वाज स्टार्टेड इन 2015। तो बेसिकली चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हाईवे बना रहा है, देखो, जो कि आपका चाइना से स्टार्ट होगा, इंडिया के पीओ के रीजन से जा रहा है ये, दैट्स व्हाई इंडिया इज अगेंस्ट दिस। और आप देखोगे इधर पाकिस्तान होता हुआ ग्वादर पोर्ट में जा रहा है। ग्वादर पोर्ट जो है, दिस इज अ पोर्ट अगेन स्टैब्लिश इन 2015 अराउंड, और ये कराची के पास है, ठीक है? तो इसमें चाइना का एम क्या है, चाइना का एम इसमें ये है दैट अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है चाइना, इजंट इट? एंड इंडिया इज अगेंस्ट दिस CPEC because this CPEC passes from POK and India says that this is our land. Please आपको कोई भी इकोनॉमिक काम करना है आप कर लो, पर हमारी जमीन से नहीं होगा। दैट्स व्हाई इंडिया इज अगेंस्ट इट। पर अभी न्यूज आ रही है दैट दिस CPEC इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान में भी एंट्री लेने वाला है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये CPEC दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो चाइना से स्टार्ट होके
देखो इधर अफगानिस्तान से ये बेसिकली इसमें इकोनॉमिक हाईवेज, ट्राइलेटरल हाईवेज बना रहे हैं ताकि ये यहाँ से ट्रेड वगैरह कर सके। और ये जा रहा है कहाँ पर, ग्वादर तक। ग्वादर इज अ पोर्ट, इट इज अ पोर्ट इन अरेबियन सी, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। और अभी न्यूज है दैट अफगानिस्तान इज ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ सी पैक। इंडिया क्यों इसे ऑब्जेक्ट करता है सी पैक को, क्योंकि आप देखते होंगे दिस मैप, ये इंडिया के कुछ एरिया से जा रहा है। इंडिया का जो पीओके रीजन है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये वहां से पास हो रहा है और इंडिया इस बात से एग्री नहीं करता। इंडिया इज सेइंग आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो फाइन, बट डोंट पास दिस एरिया फ्रॉम आवर लैंड। इफ यू पास इट फ्रॉम आवर लैंड, वी विल नॉट टॉलरेट, राइट। so this is a news you have to remember. You have to remember about CPEC. तो अगर क्वेश्चन आ सकता है दैट CPEC का एक्सटेंशन कौन सी कंट्री में हो रहा है, इट इज इन अफगानिस्तान। ठीक है। CPEC कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। CPEC में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो इनिशियली चाइना एंड पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो दिस इज द न्यूज, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर करो, ऑल दोज हु आर देयर currently write yes sir in the comment section, and then we will move forward. Yes. Okay. Right. Moving forward, India has imposed import restriction on Bangladeshi goods. Very important. अभी आपने देखा है इंडिया और बांग्लादेश की न्यूज थोड़ा लास्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर, इंडिया इज नॉट हैविंग गुड टाइम विद बांग्लादेश। जब से बांग्लादेश में लास्ट ईयर आपने देखा होगा देयर वाज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, आपने देखा होगा। और अभी इंडिया ने डिसाइड करा है दैट इंडिया इज नॉट going to openly accept imports from Bangladesh. So India has restricted imports from Bangladesh to two seaport. एक तो कोलकाता सी पोर्ट, जो हमारा सी पोर्ट है, और एक नावा शिवा इज इन मुंबई। तो ये दोनों सी पोर्ट्स पर इंडिया ने डिसाइड करा है कि इंडिया बांग्लादेश इंपोर्ट्स को नहीं एड्रेस करेगा, राइट। दिस इज अ वेरी गुड मूव, राइट। बिकॉज आपने देखा है बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा ही, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई दे आर is agitating that much. I don't know what is the reason, but now India said no, we will not do the economic terms also if you are not, behave properly. So this is very important. And with this move, this transshipment pact with Bangladesh has been cancelled, and this will give economic loss to Bangladesh. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको क्या बात याद रखनी है, आपको थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में भी पता होना चाहिए दैट वी हैव अ कंट्री कॉल्ड एज बांग्लादेश। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया किस कंट्री के साथ बनाता है, आंसर इज बांग्लादेश। अगर आपसे कोई पूछता है दैट इंडिया का वर्ल्ड का जूट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, देन आंसर इज बांग्लादेश। अगर आपसे पूछता है कोई दैट सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन दो कंट्रीज में आता है, तो याद रखना इट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। दिस इज द बांग्लादेश, यू कैन। सर मैनग्रूव फॉरेस्ट इज एग्जांपल, या एग्जैक्टली मानी। जो मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं ना, बेसिकली मैनग्रूव्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैनग्रूव्स आर द प्लांट्स विच हैज एबिलिटी टू टॉलरेट सलाइन वाटर। तो बेसिकली जो कोस्टल रीजन होगा ना, आपको वहां पे मैनग्रूव्स मिलेंगे। बस सुंदरबन डेल्टा है क्योंकि, तो वहां पे आपको थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। यस एग्जैक्टली। आप थाईलैंड जाओ घूमने, वहां पे भी आपको मैनग्रूव्स दिखेंगे खूब, राइट। सो दे यूज्ड टू हैव लॉन्ग रूट्स। आप अंडमान निकोबार जाओ, देयर आल्सो यू विल फाइंड सम मैनग्रूव्स। सो दे हैव you know ability to tolerate saline water. Sir, we share long border with Pakistan और चाइना also. बेटा देखो, अगर मैं आपको सीक्वेंस समझाऊं, तो सबसे बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश, और नंबर 2 पे आता है चाइना। ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका ना ऐसे इस तरह से बॉर्डर है, तो लेंथ वाइज वो ज्यादा हो जाता है। जनरली आप देखोगे तो आपको लगेगा यार सर चाइना के साथ ज्यादा करते होंगे, पर नो, इट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश कम्स एट नंबर 1, राइट? या exactly. That they have long roots so that they can deep into, yes exactly Rajesh। और पता है उनकी रूट्स को भी बोलते हैं, उनकी रूट्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स, ठीक है? क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है ना मैनग्रोव फॉरेस्ट की, वो थोड़ा ब्रांचेस से निकलती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में एक जगह है मेघालय, मेघालय में एक ना रूट ब्रिज है, बहुत लोग वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप कभी घूमने जाना वहाँ पे। तो वो भी मैनग्रूव्स का ही ट्री है एक्चुअली। तो जो मैनग्रूव्स ट्री होते हैं, तो बेसिकली उनमें क्या होता है, जैसे सपोज करो दिस इज अ ट्री, तो दे यूज टू हैव रूट्स which comes from their branches, so that's why they are called as breathing roots। ठीक है, नेचर है भाई देखो, तो थोड़ा देखा करो, यू नो लर्न फ्रॉम नेचर। दैट्स व्हाई इट सेज, यू नो द पर्सन who will adapt to the adversity will survive, राइट? तो आप नेचर से एग्जांपल देखा, देखो ट्री है भाई, रूट नीचे नहीं जा सकती क्योंकि मार्शी एरिया है ना, सलाइन वाटर है, तो कोई बात नहीं, ऊपर से आ जाएगी रूट ट्री को बैलेंस करने के लिए, इजंट इट? तो नेचर से एग्जांपल सीखा करो, राइट? सो मैनग्रोव्स इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट ओके वी आर। और तुम्हें पता है एक बात और, इट इज अ स्टडी दैट all those coastlines which have mangroves, they are kind of, you know, safe with respect to cyclones। तो अगर मैनग्रूव है ना कोस्ट लाइन पे, तो साइक्लोन भी आता है तो वो बचा लेते हैं वो ट्री। तो कितना अच्छा नेचर ने ना प्रोटेक्शन कितनी अच्छी दी हुई है, राइट? तो इसीलिए मैनग्रूव्स दे हेल्प इन दी साइक्लोन प्रिवेंटेशन ऑल्सो। चलो खैर, जहां तक की बात क्लियर हुई, एक बार कमेंट में जल्दी से यस सर नो सर कर दो, फिर हम चलेंगे आगे। इज इट फाइन और नॉट? जस्ट टेल मी यस सर नो सर, नो सर यस सर। या ओके ओके। ओके वेरी गुड, चलो आगे चलो। सर हाउ विल लर्न फ्रॉम ऑनलाइन एंड और फिजिकल नोट्स? बेटा, all those students who are there for the first time, there will be offline classes also। देखो, जो आपकी फ्राइडे क्लास होती है वो वीकली करंट अफेयर क्लास होगी, उसके अलावा आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, राइट? तो ऑफलाइन क्लासेस एट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स होंगी, जो आपकी फ्राइडे ये सैटरडे संडेज होती हैं। तो वहां पर आप पढ़ोगे, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बिनेशन विल बी इज देयर। अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का हम भी फायदा उठा रहे हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, राइट? तो दिस इज टू गिव यू यूनिफॉर्मिटी। ये वाली जो क्लास होती है सेंट्रलाइज क्लास होती है फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ IIMS, सो दैट यू विल have that uniformity in terms of current affairs। So I will be taking these classes, not to worry about that। Offline classes में obviously different faculties will be there, they will assist you। So in IMS we will provide you all kind of support, तो चिंता मत करो, you know, if you have just started, yeah, ठीक है? So I am taking it from, yes, for CUT general test GK is compulsory, yeah, and I will sharing this PDF with you in the Telegram channel। So I request everybody to join the Telegram channel of the centralized Telegram channel जो है, तो वहां पे आते हैं, ठीक है? तो अब थोड़ा बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे पे बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं पहले थोड़ा करंट अफेयर्स कराता हूँ, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज कराता हूँ, और फिर मैं कुछ MCQs कराता हूँ। तो कंसिडर ट्राइंग, so let's quickly come to the important days part, right? तो important days में हम बात करेंगे, सबसे पहले 30th मई को कौन सा डे होगा? तो हम बेसिकली इसी वीक के डेज हम कंसीडर करते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? या आई विल शो यू प्रेशर, नॉट टू वरी। आई डेलिबरेटली, ये जो लास्ट 2 न्यूज थी, ये डेलिबरेटली मैंने शो नहीं करी है आपको।
I will explain these in my next lecture because अभी हमें और भी करना है. So we have to cover the entire जो मेरा sequence मैंने बनाया है ना classes का. What all things we will do? We will do current affairs. We will do important days. एक क्लास में हमें ये सब करना है. We will do MCQ राउंड होगा. We will do person in the news. ये सारी चीजें कराऊंगा मैं. Right? So टाइम को देखते हुए I have manage the current affair. Not to worry. It's my job. Oh, तो थोड़ा बात करते हैं. Yeah. That this class is every Friday. Yes, this will be every Friday. देखो अब तो इसीलिए मैंने मई के इंपॉर्टेंट डेज की हम बात करते हैं. तो 30th मई यू हैव इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो एंड गोवा स्टेटहुड डे. 30th मई को गोवा स्टेटहुड डे भी होता है क्योंकि 30th मई 1987 को गोवा कंप्लीट स्टेट ऑफ इंडिया बना. यस, इट विल बी द टाइमिंग विल बी द सेम. इंटरनेशनल डे फॉर पोटैटो कब होता है? 30th मई को होता है. याद रखोगे ये बात. अगर मैं आपसे पूछता हूं, इफ आई आस्क यू नेशनल नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? देन आंसर इज शिमला. बेटा बेटा पोटैटो टेम्परेट क्रॉप है ना. पोर्चुगीज लेके आए थे इंडिया में पोटैटो. पोटैटो वाज इनिशियली केम टू इंडिया फ्रॉम पोर्चुगल. राइट. तो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने कहां पे बनाया? शिमला. याद रखोगे ये बात. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज 31st में नो एंटी टबैको डे. एंटी टबैको डे इज ऑन 31st में. वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना. ठीक है. तो याद रखना एंटी टबैको डे. तो 31st में को आपको क्या याद आना चाहिए आपके माइंड में? आपके माइंड में अजय देवगन आना चाहिए. दैट ओके वी विल हेट अजय देवगन बिकॉज आपने विमल एड देखा होगा. प्रमोशन ऑफ टोबैको. तो in Vimal we used to have three magical words. बोलो जुबा केसरी. Here we have anti tobacco day. Right. तो याद रखोगे ना. A for anti tobacco day. A for Ajay Devgan. Now you will not forget on 31st of May. तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं आपको मई के. 30th May और 31st. Rajas is asking, sir, who brought tobacco in India? Again, tobacco was also brought by Portuguese in India. That's why Jahangir was the first ruler जिसने टोबैको बैन कराया था क्योंकि पोर्चुगीज आए थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ दैट टाइम. वास्को डिगामा कम समवेयर अराउंड 1498. राइट. तो उसी टाइम पे आए थे. तो दे ब्रॉट पोर्चुगीज ब्रॉट टोबैको. दे बॉट पोटैटो. कैश्यूज वो लेके आए थे. शुगर केन लेके आए थे. राइट. तो इसीलिए आप देखोगे जहां जहां पोर्चुगीज कॉलोनी है आपको वहां पे भी मिलेगा. ब्राजील में भी मिलेगा शुगर केन बिकॉज दे हैव बीन टू देयर आल्सो. है ना. कॉलोनियल हिस्ट्री है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना. ठीक है. कोई बात है तो बताओ यहाँ पे. इज इट फाइन और नॉट? ओके. क्लियर है. वेरी गुड वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं. अब आते हैं एमसीक्यू राउंड. ठीक है. अब एमसीक्यू राउंड करेंगे मे का. ठीक है. लेकिन एमसीक्यू राउंड से पहले पर्सन ऑफ द वीक. आजकल आप देखते हो एक पर्सन अभी काफी न्यूज में है. ठीक है. कौन है? शशि थरूर न्यूज में है. क्यों न्यूज में है? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट? यस ही इज इन न्यूज. या अभी आपने देखा होगा बहुत इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं शशि थरूर के बिकॉज ही इज राइट नाउ ऑन अ डेलीगेशन. ठीक है. ही इज अ पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन जो पाकिस्तान रिलेटेड टेररिज्म को अक्रॉस द ग्लोब हाईलाइट कर रहा है. तो ही इज एमपी फ्रॉम केरला. राइट. हाँ. राइट. सर बेटा ये इसलिए है बिकॉज इससे रिलेटेड अवेयरनेस को एक कैंपेन हमने लॉन्च किया हुआ है इसीलिए उसको डेट रखा गया है. और मतलब ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इसीलिए वो जैसे अभी 5 जून आएगा. 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे हम. क्यों मनाएंगे? क्योंकि
5 जून 1972 को यूएनएप बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था। तो इसलिए वो इस तरह से वो डेज सेलेक्ट करते हैं, तो डेज का एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसीलिए मैं आपको ना मंथ वाइज करा रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें। राइट। हाँ, वो मैं कराऊंगा समर। अभी किसी का डाउट था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट डाउन। यस, ही इज लीडिंग इंडियाज डेलीगेशन टू द ग्लोब, तो ही इज मिस्टर शशि थरूर। राइट। तो अभी ये पर्सन ऑफ द वीक आप बोल सकते हो शशि थरूर को। राइट। तो अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे, थोड़ा सा भी न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे, तो शशि थरूर इज इन न्यूज दिस वीक। राइट। अब ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज ऑल दी फेमस बुक्स, ऑल दी फेमस बुक्स रिटन बाय शशि थरूर। तो आपको सारी याद नहीं रखनी। यस, दीज आर ऑल दी। हाँ, you can either read the Indian Express or the Hindu newspaper, right? So these are the famous books which are written by Shashi Tharoor. तो इसमें आपको याद रखना है, एरा ऑफ डार्कनेस इज देयर, यू हैव ग्रेट इंडियन नॉवल इज देयर, इंडिया बियॉन्ड मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, ये कुछ बुक्स हैं। तो ऑब्वियसली आपको सारी याद नहीं रख सकते आप, तो कुछ फेमस याद रख लेना। द एलिफेंट, द टाइगर एंड सेल फोन, द एरा ऑफ डार्कनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, ये मैंने भी पढ़ी है, काफी अच्छी बुक है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैन हु गेव होप टू इंडियाज दिस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रेट इंडियन नॉवल। तो ऐसे तीन चार बुक्स याद रखना, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान है। ठीक है। तो वीक, पर्सन ऑफ द वीक इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट पे आते हैं। आप कुछ टॉप 10 एमसीक्यू राउंड करते हैं आज। आज के कुछ टॉप 10 एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? अब ऑब्वियस सी बात है यार, हम लास्ट वीक ऑफ मई हम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर अप्रैल या मई में ही होगा, इजंट इट? तो इट्स वेरी नेचुरल। तो जस्ट टेल मी, आयुष्मान भारत दिवस हम कब मनाते हैं? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं हम 30 अप्रैल। वेरी गुड। तो बी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है बेटा, हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये स्टैब्लिश हुई थी कब? इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड आयुष स्टैंड्स फॉर, तो हेयर ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी, एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा, एंड एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमोपैथी। राइट। तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू आयुष। अगर मैं आपसे बोलूं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रोग्राम इंडिया में कब आया? अगर मैं बोलूं इट इज अ ट्रेडिशनल, प्रिशा, इट इज अ यूनानी, बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस। राइट। अगर मैं आपसे बात करूं आयुष्मान भारत प्रोग्राम इंडिया में कब आया, व्हेन वाज आयुष्मान भारत प्रोग्राम started? So it was started in the year 2018। ये अभी तक का वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का है। इसमें इंडिया ₹5 लाख पर फैमिली इंश्योरेंस देता है। किस लोगों, कौन, किन लोगों को? जो बीपीएल से नीचे है, इन लोगों। राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट।
So kindly write it down, then we will move forward. Right? So please write. Just say yes or no. Yes, yes, yes. वेरी गुड. ओके, चलते हैं आगे. तो फर्स्ट इज फाइन. मैंने आगे पीछे की भी न्यूज बता दी आपको. अब आप, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो आइडिया ये नहीं है कि आपको आंसर याद कराना है ना, कि इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है. दिस इज द वेरी इलॉजिकल वे टू स्टडी करंट अफेयर्स. आई हैव सीन स्टूडेंट व्हाट दे डू. जीके में खासकर करते हैं, ये क्वेश्चन पड़ा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर ए होगा. व्हाट रबिश यू आर डूइंग. ऐसे कोई याद थोड़ी ना होता है, जरूरी थोड़ी ना वही क्वेश्चन आएगा. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसीलिए मैं कभी भी आपको नहीं बोलता कि एज इट इज बी और सी याद करना है. नो, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. राइट. इफ एनीबडी स्टडिंग लाइक दिस, इसका ए इसका बी, सर हम आंसर याद कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन याद कर लेंगे. नो, यू विल नेवर एबल टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स. राइट. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, तो ये पॉइंट हमने कवर किया. आते हैं अगले 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 पॉइंट पे, आते हैं अगले करंट अफेयर का. क्वेश्चन. नेशनल इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व every year. तो ये तो आप बता ही दोगे, इंटरनेशनल लेबर डे, विदाउट एनी डाउट. जस्ट टेल मी द आंसर. आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. इट्स obviously 1st May. 1st May is celebrated as International Labor Day. Now, very important. There is one organization in the world named as ILO. ILO stands for International Labor Organization. ILO stands for International Labor Organization. So this ILO was established in the year 1990, and this organization talks about labor right and everything. And the headquarter or of ILO is in Geneva. So Geneva, headquarter of ILO, ILO International Labor Organization, right? So all these points are very much important. Clear है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बोलो yes या no. Yeah. Is it fine or not? Very good. So question number 2 is fine. Yeah, Geneva is in Switzerland. ओके. बाय. बेटा, एक्चुअली नंदिमा दिल्ली में नहीं है, पर हाँ, गुरुग्राम में है. गुरुग्राम में वी हैव इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस. राइट. हाँ. और पता है, जेनेवा की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं अभी क्लास में बताना नहीं चाह रहा आपको, क्योंकि आप नोटिस करोगे ज्यादातर हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही मिलेंगे. Madhav, yes, you have to maintain the notes, right? See, this is very important that you have to note down, have a short note so that you can revise. Although I will, share these PDF and everything, but I still require say whenever you are sitting in class, just have short jotting, एक short notes बनाते हुए चला दो, right? So make separate register for current affairs and separate for starting, right? Okay, fine. हाँ. तो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हम हमारा आइडिया ये नहीं है कि हम जितना है उतना ही पढ़ेंगे, हम आगे पीछे का भी अवेयरनेस देखेंगे. विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025.
खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? हाँ, दैट यू विल मैनेज, बानी नॉट टू वरी। यस, तो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ये जो स्टेट है ना जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, इस स्टेट में फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है। जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, इस स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी है फेमस। इस स्टेट में लीस्ट लिटरेसी रेट है। और अभी आपने देखा होगा इस स्टेट का एक 14 इयर्स का बच्चा न्यूज में आया था, जिसका नाम क्या था? यंगेस्ट टू स्कोर सेंचुरी इन आईपीएल, वैभव सूर्यवंशी। नाउ विदाउट एनी डाउट इट इज बिहार। अब याद रखोगे, तो बिहार इज द राइट आंसर। या वेरी गुड, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी मुझे लगता है किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिकॉज वी हैव टू कवर 10 एमसीक्यू इन दिस। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज देयर इन न्यूज अगेन। So what is the name of the operation conducted by Indian Army in Jammu and Kashmir on 13th May 2025 to neutralize terrorists of Lashkar-e-Toiba? अभी मई 2025 में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, राइट? ओके ओके राजेश, उसका क्या नाम था? इज इट ऑपरेशन विजय? नहीं, ऑपरेशन विजय तो अभी आएगा। ऑपरेशन सूर्या? नो, इट इज ऑपरेशन किलर, राइट? So this is A. A is the right answer. So this is just after ऑपरेशन सिंदूर। अभी हमने एक ऑपरेशन सिंदूर करा था, and just after operation सिंदूर we have launched operation killer. So A will be the right answer here. So this point also you have to remember. Now moving forward to question number 4. 4 is very important. 4 क्या बात करता है? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? संजय गांधी नेशनल पार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट लोकेटेड इन, अभी is it located in Karnataka? No. It is located in Andhra Pradesh? No. It is located in Odisha? No. So answer is Maharashtra. So Maharashtra you will find Sanjay Gandhi National Park. Please show question number 4. Yes. Please see question number 4. Right. चलें आगे. Should I move forward now? Is it fine everybody? Just write yes sir in the comment section. Just 5 more questions and then we'll wind up the session. Right. इट इज जस्ट टू गिव यू द मोटिवेशन कि हाँ ठीक है सर 10 मिनट में खत्म करने वाले हैं, तो अब हम अगले 10 मिनट काफी मोटिवेशन से बैठना चाहिए हमें, राइट? आ जाओ आगे। तो नाउ नेक्स्ट इज विच सिटी एयरपोर्ट हैज लॉन्च डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर? डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर अभी कौन से एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है, राइट? तो इट इज लॉन्च बाय Mumbai, right? So it is launched by Mumbai. This is very important. Digital first airport operation control system. तो बेसिकली जैसे आप देखते हो ना स्विट्जरलैंड वगैरह, या अभी सिंगापुर में भी आप देखो, इवन कर्नाटका में भी यू नो डेवलप हो रहा है, वो बैंगलोर में भी डेवलप हो रहा है, दैट एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल मोड एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस आर ऑन डिजिटल मोड। तो फर्स्ट डिजिटल एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी कहाँ पर बना है? मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Akang Karakatau volcano. Akang Karakatau volcano is recently in news is located in which country? Right? अकान काराकटाओ। तो बेटे जिस कंट्री में लोकेट करता है ना, उस कंट्री में एक फेमस, राइट, उस कंट्री में एक फेमस आइलैंड है जहां पे लोग काफी घूमने जाते हैं आजकल, जिसका नाम है बाली आइलैंड, राइट? तो कैन यू टेल मी बाली बाली आइलैंड इज इन विच कंट्री? इस कंट्री की जो कैपिटल है दैट इज Jakarta. Jakarta is the capital of this particular country, and this country is also famous for a Krakatau volcano. The answer is Indonesia. Yes, very good, very good. D is the right answer. Right? तो यहीं पर अभी फेमस वॉल्केनो भी हुआ, क्योंकि ये इंडोनेशिया इज नियर पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन के पास है, राइट? तो ये पॉइंट आपको याद है। चलते हैं आगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8।
हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, आदि अभी वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। नुसांत्रा जो आपका कैलिमंतन आइलैंड पे है ना, ये यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, बट अभी ऑफिशियली इट इज जकार्ता, ठीक है। तो एक एक आइलैंड ग्रुप है, या मतलब आइलैंड है जिसका नाम है न्यू कैलिमेंटन। तो वहां पे नूसांत्रा एक जगह है, वहां पर अब होपफुली इंडोनेशिया वहां पे अपनी नई कैपिटल बनाए। सर, इज देयर एनी वॉल्केनो इन इंडिया? यस अनमा, वी हैव वन volcanic island named as Barren Island. We have Barren Island, and this Barren Island is in Andaman and Nicobar, right? So this point you have to remember. So it is there in Andaman and Nicobar. All right. Any other doubt? वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब याद रखना। चलते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर। लास्ट लास्ट 3 आर लेफ्ट। अभी आपने देखा होगा दैट इन एवरी स्कूल, एवरी एरिया, देयर इज अ काइंड ऑफ अ मॉक ड्रिल प्रैक्टिस, राइट? so what is the name of the civil mock drill recently conducted in the various city of India? ठीक है, अब ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हुई थी, ठीक है। इज इट ऑपरेशन कवच? नो, ऑपरेशन कवच तो रेलवे से एसोसिएटेड, इट इज रिलेटेड टू रेलवे, रेलवे से एसोसिएटेड है ऑपरेशन कवच, राइट? इट इज ऑपरेशन अभ्यास, यस, वेरी गुड, ऑपरेशन अभ्यास। ये जो मॉक ड्रिल हमने करी थी, इट वाज अंडर ऑपरेशन अभ्यास। तो अब आप देख रहे हो 3 ऑपरेशन जो मई में ही हुए हैं। वी हैव ऑपरेशन सिंदूर, वी हैव ऑपरेशन किलर, एंड वी हैव ऑपरेशन अभ्यास। ऑल 3 operations held in month of May, राइट? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। चलते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव? वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। द S-400 इज अ मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू। ऑपरेशन किलर बेटा जो लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट हैं ना, उनके अगेंस्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है बानी? हाँ, अब आते हैं आगे। S-400 इज अ मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल which is developed by which country? तो ये अभी बहुत न्यूज में थी S-400। it is developed by Russia, right? The capital of Russia is Moscow. What is the currency of Russia? Ruble. Ruble is the currency of Russia, right? Yes. So all these points are very much important. Now to the last question of the day। आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम these drones were also in news। Songal drone are रिलेटेड टू विच कंट्री? आपने देखा होगा अभी 2 कंट्रीज को हमने दबा के प्रोटेस्ट किया है इंडिया ने। पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली करा है, उसके साथ हमने करा है टर्की को। क्यों? क्योंकि टर्की के ड्रोन यूज करे थे पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट, राइट? तो वी यूज टर्की, एंड यू नो व्हाट, नाउ टर्की इज कॉल्ड एज तुर्की। तो उसने अपना थोड़ा सा नाम चेंज किया है, ठीक है। तो ऐसे टर्की है, बट टर्की इज कॉल्ड एज तुर्की। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? अगर मैं आपसे कैपिटल की बात करूं टर्की की, इट इज लीरा, टर्किश लीरा, सॉरी इट इज करेंसी, करेंसी इज टर्किश लीरा। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल, इट इज अंकारा, अंकारा इज द कैपिटल। नो, इट्स नॉट इस्तांबुल, इस्तांबुल नहीं, राइट? अगर आपसे मैं बोलूं विच कंट्री इज कॉल्ड एज सिक मैन, सिक मैन ऑफ यूरोप, सॉरी, हाँ, यस इट इज लीरा बेटा, एल, इट इज एल, नॉट एच, टर्किश लीरा। हीरा नहीं है हीरा तो स्वीट्स है राइट? इट इज लीरा, किसी को एच लग रहा होगा मेरा, राइट? इट इज एल, टर्किश लीरा। हाँ, राइट, यस, इट्स फाइन नाउ। हाँ, ये सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं टर्की को। और पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको याद होगा पुराने, देयर वाज अ एम्पायर व्हिच इज कॉल्ड एज ऑटोमन एम्पायर,
तो एक्चुअली क्या है, टर्की की जो लोकेशन है ना, टर्की का जो लोकेशन है वो दोनों कंट्रीज में दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है। एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है। तो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे ना ये पूरा एरिया, टर्की वाला जो एरिया है, इस्तांबुल इस्तांबुल वगैरह, ये सब कुछ ऑटोमन्स के अंडर था, है ना। तो होता क्या था, जो यूरोप के ट्रेडर्स थे, जब उन्हें एशिया के साथ ट्रेड करना होता था, तो पहले तो वो इजीली कर लेते थे जब रोमन एम्पायर था। पर जब ऑटोमन एम्पायर आया तो वो ट्रेड नहीं करने देते थे, वो उनसे ज्यादा टैक्स लेते थे। तो यूरोप की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई थी इससे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिक मैन ऑफ यूरोप, राइट। So this is very important point you have to remember. Even जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल हैज हैव अ ह्यूज हिस्ट्री। इट वाज कॉल्ड, ये ब्रेजेंटाइन एम्पायर के टाइम पे भी था, रोमन एम्पायर के टाइम पे भी था। तो रोमन एम्पायर के टाइम पर इस्तांबुल को बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपोल, बिकॉज इट इज फ्रॉम द नेम। और फिर कॉन्स्टेंटिनोपोल को ही नाम चेंज किया ड्यूरिंग टाइम ऑफ ऑटोमन एम्पायर एज इस्तांबुल, right? So it has a very rich, you know, history of Turkey, because it has seen the Roman Empire earlier, then Byzantine, Ottomans, many different empires it has witnessed, right? So ये सारी बातें आपको याद है। Turkish lira, Ankara, sick man of Europe, right? So I guess now this is fine. This is all from today's class. I hope you like this session. See you soon in my next class. If you have any doubt, you can post your doubt. All those who don't have doubt, they can easily say bye and go. Right? Thank you so much. Yeah, recording will be provided. It will be provided, not to worry. RBI न्यूज, ओके। ये आरबीआई की न्यूज थी जो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी को ग्लोबल करने की बात है, राइट। So let me show you this RBI news. This one was the first thing. Yeah, PDF will be shared in the group, not to worry. Thank you, Manak. So thank you so much.